Welcome SVPH to presentation on chapter number 12, Mola Nasruddin, and this is part 5 of our presentation. So students, in our previous presentation, we did question number A1, right? Now let's start with question number A2. So answer these questions. You have to answer these questions. Number 1, who is Zorak? What rule does he make? Okay, so you know what is the meaning of who means कौन. So who is Zorak? Zorak कौन है? You know who is Zorak? Zorak is a king. Zorak कौन है? King है, right? So Zorak is a king. What rule does he make? What means क्या? So क्या rule does he make? Zorak जो है बनाता है या मेक करता है. So you know what rule does he make? So for the rule, you come to page number 114 and you will see the rule. The rule is tax must be levied on the visitors from Hortu. Okay, so this is the answer for your question. What rule does he make? Tax must be levied on the visitors from Hortu, right? Now next question. Who do the people of Hortu go to in order to get their problem resolved? So you know what is the meaning of resolve? Resolve मतलब solve होना, किसी problem का solution निकलना. So who do the people of Hortu go to? इसका मतलब है जो Hortu के जो people हैं वो किसके पास जाते हैं in order to get their problem resolved, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए. So you know the answer? The people of Hortu go to Mullah Nasruddin or Hoja. Clear? Now number 3. Why can't Akram catch Nasruddin? Even when he says that he is a smuggler. So you know the meaning? Why can't Akram catch Nasruddin? Akram जो है वो नसरुद्दीन को why क्यों कैच नहीं कर सका? Even when means जबकि. He says, he means मुल्ला नसरुद्दीन. ओके, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन says कहता है that he is a smuggler. So इसका मतलब है एक्रेम नसरुद्दीन को क्यों कैच नहीं कर सका जबकि नसरुद्दीन कहता है कि he is a smuggler. So the answer of this question is because Mullah Nasruddin was smuggling animals. मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो एनिमल्स स्मगल कर रहा था. ओके, एंड अकरम कुड नॉट थिंक. अकरम जो है वो कुड नॉट थिंक, सोच नहीं सका कि एनिमल्स आर बीइंग स्मगल्ड. राइट? नाउ नेक्स्ट वन, A3. थिंक एंड आंसर. इसमें आपको क्या करना है? थिंक करना है एंड देन आंसर करना है. What plan does Mullah Nasruddin come up with? What means क्या? प्लान आपको पता है, आइडिया. सो क्या आइडिया मुल्ला नसरुद्दीन कम अप विद? कम अप विद मतलब लेके आना या दिमाग में एकदम से होता है ना, कभी कभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, राइट? सो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो क्या प्लान के साथ में एकदम से आता है, राइट? कम अप विद मतलब टू थिंक ऑफ सम आइडिया. So do you know what plan Mullah Nasruddin comes up with? So the answer is Mullah Nasruddin tells people of Hortu to smuggle animals.
राइट, इन द सिटी ऑफ आक्षी हिर। सो क्या आइडिया लेके आता है? मुल्ला नसरुद्दीन टेल्स द पीपल ऑफ हॉटू, हॉटू के जो लोग हैं उनको कहता है टू स्मगल, स्मगल करने के लिए एनिमल्स, राइट, क्लियर? सो अगेन आई रिपीट, मुल्ला नसरुद्दीन टेल्स पीपल ऑफ हॉटू टू स्मगल एनिमल्स। नाउ नंबर 2, how do the people of Hottu become rich? So you know the answer. How, H-O-W, how means कैसे. So how do the people of Hottu, जो Hottu के जो people हैं, Hottu के लोग हैं, so how do they become rich? वो कैसे rich हो जाते हैं? Do you know the answer? So the answer is here. The people of Hottu become rich by selling camel's milk, sheep's wool, and using donkeys for rides. Clear? Now A4. Learn interesting things. What kind of a person was Mullah Nasruddin? So Mullah Nasruddin जो है वो what kind of person, किस टाइप का पर्सन था? ब्रीफली डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में, सो ब्रीफली डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना है, बताना है, हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में, यूजिंग दीज कीवर्ड्स। और आपको कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं बच्चों? काइंड, वाइज, हेल्पफुल, ट्रूथफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Mullah Nasruddin was a kind but wise person. He was very helpful and he was very truthful as well. Clear? So you can write this much. Now next one, read these words and their meanings. आपको क्या करना है? ये जो these words हैं उनको read करना है and their meanings, आपको उनकी मीनिंग्स को जो है वो भी रीड करना है. द वर्ड्स आर साउंड द सेम. ओके, सो द वर्ड जो है वो कैसे साउंड करते हैं? सेम साउंड करते हैं, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. बट उनकी जो मीनिंग्स हैं, THEIR, देयर मीन्स उनकी, सो उनकी मीनिंग्स जो है वो क्या है? डिफरेंट. नंबर 1, BEB. सो बी मीन्स टू बी प्रेजेंट, लाइक आई विल बी देयर. आपको सपोज को इन्वाइट करता है, यू प्लीज कम टू माई बर्थडे, आप क्या कहेंगे? यस आई विल बी देयर. सो बी मतलब टू बी प्रेजेंट, वहां पे प्रेजेंट होना. एट द सेम टाइम BEEB. BEE मीन्स आपको सबको पता है मधुमक्खी. ओके, सो BEEB इज एन इंसेक्ट. वो इंसेक्ट है, वो कीड़ा है दैट मेक्स हनी, जो क्या बनाती है? हनी. आप सबको हनी पसंद है, राइट? देन KNEAD, नीड. नीड का मतलब है टू मसाज और स्क्वीज. किसी चीज को मसाज करना है, किसी चीज को स्क्वीज करना. SQUEEZE, स्क्वीज. स्क्वीज मतलब किसी चीज को निचोड़ना. एंड देन एट द सेम टाइम NEED, नीड. नीड मीन्स टू वॉन्ट. फॉर एग्जाम्पल, you want something, then what will you tell your parents? That mummy or papa, I need pencil or I need a notebook. मतलब मुझे पेंसिल या नोटबुक की जरूरत है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ NEED, need. Then the next one, WEIGHT, weight. weight मतलब वजन. How heavy something or someone is. For example, आपका वेट कितना है? ओके, सो हाउ, व्हाट इज योर वेट? एंड WAIT, वेट. वेट मीन्स किसी चीज के लिए इंतजार करना. सो टू स्टे वेयर यू आर अंटिल समथिंग हैपन्स और समवन कम्स. आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, सो दैट इज WAIT, वेट. देन FLU, फ्लू. फ्लू मीन्स बुखार, राइट? An infection that causes cold,
फीवर एंड वीकनेस, ये जो होता है ना वायरल फीवर, उसको हम बोलते हैं फ्लू. देन FLEW फ्लू. FLEW फ्लू मीन्स फ्लाई, FLY फ्लाई. फ्लाई मतलब उड़ना, और उड़ने का ये है पास्ट टेंस, उड़ा. ओके, सो FLEW फ्लू मीन्स उड़ा. देन द नेक्स्ट वन SENT सेंट. सेंट का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, एंड इट इज पास्ट टेंस ऑफ SEND सेंड. सेंड का मतलब होता है भेजा, एंड इसका पास्ट टेंस भेजा, उसके लिए हम यूज करते हैं SENT सेंट. एंड SCENT सेंट, दिस इज बेसिकली अ गुड स्मेल. परफ्यूम की जो स्मेल होती है ना, सेंट, SCENT, राइट. सो नाउ लेट अस ट्राई टू डू समथिंग. नाउ फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. आपको जो है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग, CHOOSING, choosing the correct word. Okay, so choose the correct word, right? Let's start. If you eat all that cake, you will dash ill. So if you eat all that cake, if means agar, you, aap, eat, you know what is the eat. सो इफ यू ईट मतलब अगर आप ईट करोगे, खा जाओगे, ऑल दैट केक, पूरा केक, देन व्हाट विल हैपन, यू विल BE और BEE. सो यू विल बी इल. व्हाट विल हैपन, यू विल बी इल, राइट. आई डू नॉट डैश अ न्यू स्वेटर. मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है न्यू स्वेटर की. सो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, KNEAD यूज़ करेंगे या NEED यूज़ करेंगे. व्हाट विल यू यूज़, यू विल यूज़ NEED. ओके, आई डू नॉट नीड अ न्यू स्वेटर, राइट. देन नंबर 4, द बर्ड्स डैश ओवरहेड इन द इवनिंग. ओके, द बर्ड्स, FLU फ्लू होगा या FLEW होगा. Here it will be FLEW flew. Okay, so the birds flew overhead in the evening. सर के ऊपर से उड़ गई. Overhead मतलब सर के ऊपर से. So the birds flew overhead in the evening. Birds जो है वो इवनिंग में सर के ऊपर से फ्लाई कर गई. फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू. देन नंबर 5, NIDA, निडा डैश मी अ जार ऑफ जैम. सो निडा ने मुझे जो है जैम का एक जार क्या किया, सेंड किया, भेजा, राइट. सो भेजा, सेकेंड फॉर्म क्या है सेंड की, SENT सेंट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, यू नो दैट एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों एडजेक्टिव के बारे में. यू नो व्हाट इज नाउन. नाउन इज बेसिकली नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. बट कभी कभी क्या होता है, 2 से ज़्यादा नाउन होती हैं और उन नाउन को हम कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैसा बच्चा, टॉल बच्चा. ओके, राइट. और कैसा एनिमल, हेवी एनिमल. तो यहां पे क्या है, कौन सा वर्ड है जो उसके बारे में, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. टॉल बॉय, तो टॉल, टॉल डिस्क्राइब कर रहा है ना, दैट हाउ इज द बॉय, बॉय इज टॉल. सिमिलरली एलिफेंट. सो हाउ इज एन एलिफेंट, एलिफेंट इज ब्लैक कलर, राइट. देन इट्स अ हेवी एनिमल. तो हेवी, हेवी क्या है, एडजेक्टिव, राइट. सो डिड यू नो दैट एडजेक्टिव मे बी कंपेयर्ड टू टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द नाउन. तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में, उनकी क्वालिटीज बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैवी बैग और ब्लैक कलर एनिमल, टॉल बॉय, लॉन्ग हेयर. सो ये जो है ना लॉन्ग, हैवी, ये क्या है, क्वालिटीज बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट, चीज़ों को. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, बिल्डिंग A एंड बिल्डिंग B. Now we can see that building A,
How is the building A? Building A is taller. How is the building A? Building A is taller than building B. So यहाँ पे adjective क्या होगा बच्चों? Taller, right? And elephant B is larger than elephant A. यहाँ पे you see this is elephant A, baby elephant, and this is big elephant B. So elephant B is कैसा है? elephant B larger, बड़ा है किससे? elephant A से. So adjective can be used to compare two things. और things क्या होती है? Noun. What you compare. Okay, when you compare two things, it is called the comparative degree of comparison. तो जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, then it is called the comparative degree of comparison, right? Now use er after the adjective and the word then to compare. तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? जो भी वर्ड होता है ना, जो भी एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में er यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉल एडजेक्टिव है, बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल डू? वी विल यूज er. तो टॉल के आगे हम er लगा देंगे, दैट मीन्स टॉलर. और उसके साथ में हम वर्ड यूज करते हैं THAN, देन. तो देन हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल नसरुद्दीन इज वाइजर देन एक्रेम. यहां पे दो करेक्टर हैं, नसरुद्दीन और एक्रेम. एक्रेम सिक्योरिटी गार्ड. अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनमें कौन ज़्यादा वाइज है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आप डेफिनेटली क्या बोलेंगे कि भाई नसरुद्दीन जो है वो एक्रेम से ज़्यादा वाइजर है या ज़्यादा बुद्धिमान है. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नसरुद्दीन इज वाइज, वाइज के आगे ER लगाया तो क्या हो जाएगा? वाइजर. और दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. कौन कौन सी चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं? नसरुद्दीन एंड एक्रेम. तो हम यूज़ करेंगे THAN देन का. सो नसरुद्दीन इज वाइजर देन एक्रेम, राइट? देन नेक्स्ट वन, माई हेयर इज लॉन्गर देन योर्स. सपोज आप अपने हेयर, जो आप अपने बाल है ना, उनको कंपेयर कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट विल यू से? माई हेयर इज लॉन्गर देन योर्स. आपके जो हेयर है उससे लॉन्ग, लंबे, और लॉन्ग के आगे ER, लॉन्गर देन योर्स, राइट? देन द नेक्स्ट वन, यू आर कंपेयरिंग अ बाइक एंड ए कार. अब आपको पता है बाइक और कार में कौन स्मॉल है? बाइक इज स्मॉल, करेक्ट? अब आप कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, टू थिंग्स, बाइक एंड कार. सो क्या करेंगे? जो आपका एडजेक्टिव है उसके आगे क्या लगाएंगे? ER. एडजेक्टिव क्या है? स्मॉल. तो स्मॉल के आगे ER लगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर, राइट? स्मॉलर. बट दो चीजें जब कंपेयर करते हैं, देन यू हैव टू यूज THAN देन ऑल्सो. सो क्या सेंटेंस होगा? अ बाइक इज स्मॉलर देन अ कार, राइट? In some words, we add the last letter of the adjective, okay, of the adjective before ER. तो कुछ में हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेटर है ना एडजेक्टिव का, वो हम रिपीट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल BIG, बिग. अब हम जब उसमें ER ऐड करते हैं तो हम BIG ER नहीं लिखते, हम जो लास्ट लेटर है ना G, उसको रिपीट कर देते. तो क्या हो जाएगा? BIGGER, बिगर. ओके. देन THIN, थिन. तो हम सीधा THINER नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? जो लास्ट लेटर है उसको रिपीट कर देंगे. सो THINNNER, क्लियर? सिमिलरली HOT, हॉट. तो हॉट में क्या करेंगे? हम HOTER नहीं करेंगे, बट लास्ट लेटर को रिपीट कर देंगे. सो HOTTER, राइट? नाउ नेक्स्ट रूल, फॉर द वर्ड्स एंडिंग विद Y, जो भी वर्ड्स Y से एंड करते हैं वहां पे हम क्या करेंगे? Y को तो रिमूव कर देंगे और Y की जगह पे हम यूज करेंगे IER. ओके, Y को रिमूव करके क्या यूज करेंगे? IER. फॉर एग्जाम्पल बिजी,
busy, busy. So if you want to say I am busier than you, तो आप क्या करेंगे, busy का जो लास्ट y है वो हटा के IER लगाएंगे, राइट. सो busy का busier, ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है. देन MERRY, लास्ट में क्या है, y. मेरी मीन्स हैप्पी, ओके. एंड आई एम मोर हैप्पियर देन यू, मैं आपसे ज़्यादा खुश हूं. सो यहां पे क्या होगा, y हट के IER आएगा, राइट. नाउ लेट अस डू दिस. एड ER टू चेंज द एडजेक्टिव टू कंपैरेटिव फॉर्म. सो लॉन्ग, तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा, LONGER, लॉन्गर, राइट. नाउ EASY, यहाँ पे क्या है, लास्ट में y है. तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, हम y हटा के IER लगाते हैं. तो EASIER, राइट. नेक्स्ट वन BIG. तो यू नो इस केस में क्या होगा, BIG रिपीट होगा, BIGGER, बिगर. नाउ TALL, tall. So TALLER, taller. SMART, smart. तो इसके आगे आप ER लगा दो, smarter. Then SHARP, sharp. Sharp के आगे भी ER लगा दो, sharper, right? Now C2, fill in the blanks to compare the two nouns. आप क्या कर रहे हैं, fill in the blank कर रहे हैं to compare two nouns. Two nouns को compare करने के लिए. यूज द गिवन क्लूज इन द ब्रैकेट. आपको जो गिवन क्लूज है ब्रैकेट में वो यूज करते हैं, नए हैं. आई एम डैश माई कजिन, यंग. आई एम यंगर देन माई कजिन. सो YOUNGER, यंगर देन माई कजिन. नाउ नेक्स्ट वन, सिक्किम इज डैश आसम. सो सिक्किम इज कोल्डर, COLDER, कोल्डर देन असम, ओके. कोल्डर देन, और यहां पे भी आई एम यंगर देन, राइट, यंगर देन माई कजिन. देन नेक्स्ट वन, ए रेसलर, WRESTLER, रेसलर. रेसलर मीन्स पहलवान जो कुश्ती लड़ता है. सो अ रेसलर इज डैश अ फुटबॉलर. अब आपको पता है जो पहलवान होता है वो फुटबॉलर से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट. सो अ रेसलर इज स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर देन THAN, देन अ फुटबॉलर. नेक्स्ट वन, देयर आर डैश एप्पल्स डैश मैंगोज. सो नाउ क्या करेंगे, देयर आर फ्यूअर, FEWER, fewer apples than mangoes. मतलब मैंगोज के कंपेयर करने पे, ओके, फ्यूअर एनिमल्स हैं, फ्यूअर एप्पल्स हैं. सो मैंगोज से कंपेयर करने पे फ्यूअर एप्पल्स हैं, मतलब कम एप्पल्स हैं. ऐसे केसेस में क्या लिखेंगे आप, देयर आर फ्यूअर एप्पल्स देन मैंगोज. क्लियर. नेक्स्ट वन, आई एम डैश माई ब्रदर, स्मार्ट. सो आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आई एम स्मार्टर, SMARTER, स्मार्टर देन माई ब्रदर. आप सबको लगता है कि आप अपने भाई बहन से ज़्यादा स्मार्ट है, राइट. सो यू विल राइट आई एम स्मार्टर देन माई ब्रदर, राइट. With this, we stop here. You please go through the question answers on your own and learn all the difficult words. Thank you.